خير وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اجاز بھائی نے بہت اچھا آپ کو ریویژن کرایا اور آپ نے تعوذ کی جو اہمیت ہے اس کو جان دیا. آج ہم تھوڑی سی ہماری کلاس کا فارمیٹ ایسا ہوگا کہ اس میں ہم 3 سیشنز کریں گے. 1B کریں گے, 2A اور 2B کریں گے, کیونکہ ہم نیکسٹ ویک سے پھر بیلنس میں آ جائیں گے, ورنہ ہم لیگنگ میں چلتے رہیں گے. انٹروڈکشن پارٹ تھا, اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ٹائم میں زیادہ ایکسٹینشن نہ کریں, لیکن شاید 5-10 منٹ اوپر ہو جائے. تو آپ سے ابھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اسٹے ود می. اللہ کے لیے ہم یہ ٹائم 5-10 منٹ اوپر زیادہ ضرور لگا سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. عربی کی گرامر کو نام سنتے ہی اکثر انسان گھبرا جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہوگا, لیکن بھائی اور بہنوں یقین مانیں کہ بہت آسان ہے, بہت مزہ آئے گا آپ کو. اور گرامر جب آپ بھی ہم شروع کریں گے تو آپ اس کا انتظار کیا کریں گے کہ گرامر والا جو سیشن ہے وہ آنا چاہیے جلدی سے, تو بڑا مزہ آتا ہے اس میں. آج انشاءاللہ تعالی ہم 7 الفاظ جو ہیں گرامر کے وہ ہم سیکھیں گے. یہ ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن, من. اکثر لوگ ہم میں سے واقف ہیں ان سے, اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہی ہے. گرامر کا جو حصہ ہے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر تو ہم ٹریڈیشنل وے میں گرامر کو لے کے چلیں تو واقعی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جیسے یہ ایک لفظ یہاں پہ لکھا ہے یؤمنون. یؤمنون کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ غائب ہے, جمع کا صیغہ ہے, مذکر ہے, محمود ہے, باب افعال سے آتا ہے, تو یہاں پر بھی کہانی ختم نہیں ہوتی. پھر آپ کو مزید بتایا جائے کہ فعل مضارع بھی ہے, مرفوع و ثبوت النون ہے, تو آپ یہیں پہ کہیں گے بس یہ گرامر جو ہے نا یہ مشکل ہے بھائی. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سب کے لیے مشکل ہوتی ہے. ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے. ہم یہاں پہ ایک ڈفرینٹ سٹائل سے ایک بہت ہی پیارے انداز میں گرامر کو سیکھیں گے, اور ہنستے کھیلتے ہم گرامر سیکھ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. روایتی انداز میں اکثر کہانی سٹارٹ ہوتی ہے جی کہ ھذا بیت کبیر, کہ یہ ایک بڑا گھر ہے. تو یہ بڑے گھر کو ہم نے کیا کرنا ہے جی, ہم تو سیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنے لگے. تو اسی لیے ہم نے جو نماز کا جو یہیں سے سٹارٹ کیا ہے, کیونکہ یہ ہماری پریکٹس میں ہے. پھر ہم نے تعوذ دیکھا, تسمیہ دیکھیں گے, الحمد شریف سے سٹارٹ کریں گے. تو یہ سارا ایک سلسلہ چلے گا. گرامر ہوگی ڈیفینیٹلی, لیکن بڑی بڑی اصطلاحات جیسے میں نے پہلے ابھی عرض کی آپ کو پچھلی سلائیڈ میں, ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے. ہم ایک بڑا ہی زبردست طریقہ اختیار کریں گے جی. ڈاکٹر صاحب نے اس کو TPI کہا ہے, اور TPI اسٹینڈس فور ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا ہی طریقہ ہم ذہن میں رکھیں گے, اس کو ہم ان شارٹ TPI کہا کریں گے. یہ انٹریکٹیو ہے, بڑی بڑی اصطلاحات نہیں ہے. یہ ہے کیا, اس کو بھی ہم جان دیتے ہیں. TPI آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی جو سینسز ہیں پورے جسم کو اس میں انوالو کریں. یعنی سب سے پہلے سننا ہے, تو آپ سنیے, غور سے سنیے, اس کے بعد دیکھیے, کیونکہ آپ مجھے سن رہے ہیں, آپ سلائڈس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد سوچیے. تو سنیے, دیکھیے, سوچیے. اس کے بعد جب آپ اپنی پریکٹس کریں گے, جو ہوم ورکس وغیرہ میں آپ کو اکثر کہا جاتا ہے, پھر آپ بولیے, بتائیے, لوگوں کو بتائیے, اور جو بھی کیجیے دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے, مل کے. تو یہ جو مل کے کام کرنا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں, اس سے بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو TPI ان سارے سینسز کا استعمال ہے جی. یہ جو بھی ابھی میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہمارا دماغ پرسیو کرتا ہے کہ ہاتھ ہلانے سے اور ایکشنز کرنے سے جو ہے وہ چیز کو اچھی طرح یاد, اور ریٹینشن بڑی تیز ہو جاتی ہے. تو TPI کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے جی, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. میرے ساتھ ایک بار ریپیٹ کریں گے جی سب لوگ. سنیے, مائک بے شک آن کر لیں اپنا ابھی فی الحال. سنیے, دیکھیے, سوچیے, ساتھ میں اشارہ بھی کریں, سوچیے بولیے,
بتائیے، بتائیے دل سے کیجیے، دل سے کیجیے، دل سے کیجیے دل سے اور کیجیے، مل کے کیجیے، مل کے ویری کیجیے۔ گڈ۔ کیجیے۔ مائکس آف کر لیں پلیز۔ اچھا، ٹی پی آئی کا استعمال جو ہے اس کو کائنڈلی یہ مت سمجھیے کہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، بڑی اس پہ تحقیق ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب ان کی ٹیم نے بڑا اس پہ تجربے کر کے اور اس کو جو ہے وہ کیا ہے پوری دنیا میں، ابھی یہ ماشاءاللہ رائج ہے۔ ابھی سے پریکٹس کیجئے، کیونکہ اس کی پریکٹس سے جو ٹی پی آئی کے اشارے آج ہم ڈسکس کریں گے، آپ 20,000 الفاظ ایسے چٹکی میں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، کوئی آپ کو پرابلم نہیں آئے گی۔ اور یہ مت کیجئے کہ اچھا بعد میں کروں گا، ابھی میں نہیں کرتا، بچے پیچھے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، کہیں گے کہ کیا اشارے کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا اس کو۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے کام میں کوئی شرم حیا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے بھی نہیں شرماتا کہ مکھر ایک مچھر یا اس کے اوپر کی کوئی چیز ہے اس کی بھی مثال دے دے۔ تو قرآن پاک میں جب یہ ہے تو ہمیں تو اشارے کرنے میں اور سیکھنے کے لیے there is nothing۔ اور ایک مثال بھی آپ کو دیتا چلتا ہوں، یہ دیکھیے موبائل ہوتا ہے، ہم سے کوئی راستہ پوچھے کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، پہلی دفعہ آ رہا ہو تو ہم موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سے سیدھے جانا، وہاں سے رائٹ لے لینا، پھر یو ٹرن، ایک گول دائرہ آئے گا، وہاں سے گھوم کے یو ٹرن لے لینا اور پھر آگے اس کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے دماغ کا کہ یہ، حالانکہ بندہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہے لیکن ہم موبائل پہ بات کرتے ہوئے بھی ہاتھ کے اشارے کرتے ہیں، اس سے ہمارا جو لرننگ پروسیس ہے اس کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ تو ٹی پی آئی جو ہے یہ بیسیکلی بڑا سادہ مؤثر طریقہ ہے، عربی زبان کے سیگے ہم بڑی اچھی آسانی سے سیکھیں گے، اور اس میں جو ہے نا وہ شیطان کو بیچ میں مت آنے دیں، وہ آپ کو بڑے جو ہے نا وار کرے گا، چھوڑو ابھی نہیں کرنا، بعد میں کر لینا، کیا ضرورت ہے، ایسے ہی سیکھ لینا، تمہیں ایسے ہی آ جائے گا، لیکن آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے اور وہ بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ جی، یہاں پہ آپ کے سامنے کتنے الفاظ دیکھتے ہیں جی آپ؟ کوئی بتائے گا؟ چیٹ میں لکھ دیں یا مائک میں بول دیں، کتنے الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ؟ 6۔ 6۔ ماشاء اللہ جی، 6 تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بلو میں دیکھیں، یہ کچھ 1300 کے قریب ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ اگر ہم سیکھ لیں گے تو قرآن کے 1300 کے قریب الفاظ ہم سیکھ لیں گے، کیونکہ یہ 1300 بار ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں، تو ان 78,000 میں سے 1300 تو خالی یہی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑا ایک فگر ہے، تو اس کو اس لیے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ یہ دیکھیں ہوا، یہ ساتھ میں یہاں پہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ ہم اشارے کیسے کریں گے۔ نمبر 1 دیکھیں، 2 ہاتھ ہیں، ایک رائٹ ہینڈ ہے، ایک لیفٹ ہینڈ ہے۔ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے جب ہم بات کر رہے ہوں گے میسکولن کی، یعنی کسی مرد کے بارے میں، ٹھیک ہے، میل کے بارے میں، تو رائٹ ہینڈ سے ہم اشارہ کیا کریں گے۔ جب کسی عورت کے بارے میں ہم بات کریں گے آگے تو ہم لیفٹ ہینڈ استعمال کریں گے۔ آج کے پورے لیسن میں ہم رائٹ ہینڈ ہی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ آنے والے لیسنز میں پھر ہم لیفٹ ہینڈ پہ جائیں گے، لیکن فی الحال آج کے لیسن میں صرف رائٹ ہینڈ۔ اگر میں رائٹ ہینڈ سے ایک انگلی ایسے کروں گا، ایک انگلی کا اشارہ کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی ایک مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی ایک مرد کے بارے میں۔ اگر میں یہ ساری ہاتھ ایسے کھول دوں گا، یہ ساری انگلیاں کھول دوں گا چاروں کی چاروں ایسے، تو پھر میں اشارہ کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں بہت سارے مردوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر میں ایسے کروں گا، میں کہوں گا ہوا ہوا، ہوا کا مطلب ہے کہ وہ ایک مرد، وہ ایک مرد۔ اگر میں ایسے کروں گا اس کا مطلب ہوگا ہم ہم، ہم کا مطلب ہے وہ سب مرد، ہوا ہم، ہوا ہم۔ پریکٹس کریں گے میرے ساتھ تھوڑی سی، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم۔ اسی طرح اگر میں ایک انگلی کا اشارہ کروں گا ایسے آپ کی طرف، آپ کی طرف، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ، اور اگر میں اپنی طرف اشارہ کروں گا اس کا مطلب ہوگا کہ میں، آپ میں، وہ سب، آپ میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر میں اشارہ کروں گا ساری انگلیوں کا آپ کی طرف، یہ ایسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب مرد، یہ آپ سب مرد، ٹھیک ہے، آپ سب۔ اگر میں یہ ساری انگلیاں اپنی طرف کروں گا، ایسے کروں گا یا ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب۔ تو ایک دفعہ ایک پورا ان 6 سیغوں کو ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ ہوا وہ ایک مرد، مائک آن کر لیں آپ پلیز تھوڑا سا،
ہوا وہ ایک مرد. ہم وہ سب مرد. وہ سب مرد. ہم وہ سب مرد. ہوا وہ ہوا وہ ہم وہ سب. وہ سب. ہم وہ سب. ہم وہ سب. انتا آپ. انتا آپ. انت آپ. جی انتا آپ. انا میں. انت انا میں. یہ ساتھ انا ساتھ میں. اشارے کیجیے جیسے میں اشارے کر رہا ہوں. انتا آپ. انا میں. میں. انا میں. انتم آپ سب. انتم آپ سب. انتم آپ سب. آپ سب. نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. alright. ایک دفعہ اکٹھے آپ سب. سارے کرتے ہیں. ہوا وہ. ہوا وہ. اسٹینڈ. ہم وہ سب. وہ سب. وہ سب. ہم وہ سب. انتا آپ. انت آپ. انا میں. میں. انا میں. انا میں. انتم آپ سب. آپ سب. انتم آپ سب. آپ سب. نحنو ہم سب. ہم سب. نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. ماشاء اللہ جی. یہ ہم نے بس سیکھ ہم لینا ہے سب. کہ ہوا انتا انا انتم نحنو. یہ ہمارے جب ٹپس پہ آ جائیں گے انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوگی تو 1300 الفاظ تو یہ ہم سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا اس کو عربی لینگویج میں جو نئے الفاظ ہیں ان کو اور کیسے بول چال ہوتی ہے اس کی طرف آتے ہیں. ابھی آج جو ہم نیا ایک لفظ سیکھیں گے 6 تو ہم نے وہ سیکھ لیے. 7واں یہ ہے من. ہم اکثر اس سے واقف ہیں کہ من کا مطلب ہوتا ہے کون. من. من انتا آپ کون ہیں یا تم کون ہو. من. تو اب اس من کے ساتھ اور وہ ہوا ہم کو ملا کے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بول چال سیکھیں. دیکھیں اگر میں یہ کہوں گا کہ من ہوا. من ہوا. من ہوا کا مطلب ہے کہ پوچھ رہا ہوں کہ من ہوا کہ وہ ایک مرد جو ہے وہ کون ہے. من ہوا. تو آپ اشارہ کریں گے ہوا مسلم. میں آپ سے پوچھوں گا من ہوا آپ کہیں گے ہوا مسلم. میں آپ سے پوچھوں گا من ہم. من ہم وہ سب مرد کون ہے تو آپ کہیں گے ہم مسلمون جمع کے صیغے میں. میں آپ سے پوچھوں گا من انتا. من انتا تو آپ کہیں گے انا مسلم. پھر میں کہوں گا کہ من انتم کہ آپ سب کون ہیں. سب مرد. آپ سب مرد کون ہیں تو آپ کہیں گے نحنو. نحنو مسلمون. یہ جواب ہوگا. لیٹس ہیو اے پریکٹس. پریکٹس کرتے ہیں. آپ مائک آن کر لیں. میں آپ سے پوچھوں گا آپ جواب دیں گے. من ہوا. ہوا مسلم. ویری گڈ. ویری گڈ. من ہم. مسلمون. من انتا. انا مسلم. اشارہ بھی کیجیے. انا مسلم. انا مسلم. من انتا. انا مسلم. ماشاء اللہ. انا ماشاء اللہ. مسلم. من انتم. من انتم. نحن مسلم. نحن مسلمون. نحن مسلم. نحن مسلمون. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نحن مسلمون. اچھا بڑی دلچسپ ہے جی. عربک کے اندر یہ آپ کو وا فا اور آ یہ بہت دفعہ ملیں گے. قرآن پاک میں بہت دفعہ آئیں گے. ان کے مختلف معنی ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہم ان کے جو معنی ہے وہ وا کا مطلب اور لیں گے یعنی اور اینڈ کی اس میں وا اور فا کا مطلب ہے پس جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا پس یہی ہے. اور آہ کیا کوسچن مارک ایک آہ. ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اور وہی ہوا ہم وغیرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے من کو کیا تو دیکھیں کیا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. دیکھیں عربی میں مختلف الفاظ کو جب ہم ملاتے ہیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا تو نیا اس کا ایک پورا فریز بن جاتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم وا کو ہوا کے ساتھ ملائیں گے تو واہ ہوا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ مرد. واہ ہوا اور وہ مرد. واہم مطلب کہ وہ سب مرد. واہ ہوا وہم. واہ ہوا وہم. تو اسی واہ کے ساتھ ہم یہ ساری پریکٹس کرتے ہیں. جی میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا. واہ ہوا اور وہ. ہوا اور وہ. واہ ہوا اور وہ مرد. جی ماشاء اللہ. وہم اور وہ سب. وہم اور وہ سب. اور وہ سب مرد. وانت
और और आप आप वअना, और मैं और मैं इसको अना नहीं कहना, इसको अना, अना अपने आप को छोटा अना, रखना, अना वअना, अना, ठीक है, अना। और मैं, वअंतुम, और और आप आप सब वनहनु, और और हम हम सब सब। वनहनु माशाअल्लाह और हम माशाअल्लाह सब। माशाअल्लाह। अब इसी तरह फा के साथ कर लेते हैं, कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है, जैसे वा लगाया इसी तरह फा लगा देंगे। फा को जोड़ के लगा दिया, वाह क्योंकि उसके साथ जुड़ता नहीं है तो इसीलिए वाह हुआ अलग अलग लग रहा है, जैसे ये लग रहा है वार हुआ। यहाँ पे फा साथ लग जाता है तो फा हुआ हो गया। तो इसका भी मतलब क्या है, फा हुआ बस वो मर्द, फाहुम बस वो सब मर्द। सब। तो इसी के साथ फा के साथ लेट्स हैव अ प्रैक्टिस। बल्कि मैं चाहूंगा आप में से कोई वॉलंटियर करे, कोई एक साथी जो है ये प्रैक्टिस करवा दे फा हुआ इसी तरह इशारे के साथ। अंत। अगर कोई ब्रदर करना चाहते हैं तो बेशक वीडियो ऑन कर लें, सिस्टर अपनी वीडियो ऑन नहीं करेंगे, वो वैसे ही कराएंगे। तो काइंडली कोई एक रेज योर हैंड और आई हैव टू हैंड पिक वन ऑफ यू इंशाल्लाह। क्या चाहते हैं? कौन है हमारे साथ अप फ्रंट? असद भाई है हमारे साथ। असद आलम ब्रदर, आर यू देयर? आर यू विलिंग टू डू इट? काइंडली असद भाई करवाइए जरा प्लीज, ये हमें फा हुआ के साथ प्रैक्टिस करवाएं इशारों के साथ। जी एक सेकंड। फहुआ फा हुआ, फहुआ फा पसवो हुआ बस वो मर्द, पसवो मर्द, बस फहुम वो मर्द। पसवो सब मर्द। जी साथ में इशारे कीजिए ऐसे फअंता साइड पे, पस ये आप साइड पे, हाथ को ऐसे रखना है साइड पे। असद साहब साइड पे, ये देखिए मेरा जी हाथ कैसे है साइड पे, ये जी जी ऐसे ऐसे रखेंगे। जी एक फहुआ जी फा हुआ, फा हुआ, हम। फा हुआ, फहुआ अंता। पसवो मर्द, बस वो बस वो मर्द। आगे चलेंगे। फहुम फाहुम, पस बस जी वो सब फाहुम, मर्द। फहुम फाहुम, फाहुम फहुम पसवो सब मर्द। बस वो सब मर्द। फअंता पस आप, बस आप अंता बस आप, आना बस फअना मैं पस मैं, फाना बस मैं, फअंतुम पस आप सब, फाअंतुम बस आप सब, फनहनु बस हम फनहनु सब। बस हम सब। एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया ब्रदर असद आपका। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे एक कुछ फैक्ट्स फिगर्स जरा ध्यान में बिठा लें। ये देखें, अभी हम टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए हमने ये अल्फाज सीखे और इसमें ये नंबर्स दिए हुए आपके पास, ये स्लाइड आपके पास आ जाएगी। ये 1300 के करीब टोटल बनते हैं कि ये सिर्फ ये हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये सीख के हमने 1300 अल्फाज सीख लिए। कितना ईजी है। तो नुक्ता तालीम क्या है जी? कुरान को सीखने के लिए हमें दिमाग इस्तेमाल करना है और ये बड़ा ही ताकतवर दिमाग अल्लाह ताला ने आपको दिया है जी, बहुत ही ताकतवर। शैतान इस पे भी आपको, ओ यार क्या आप इस स्टेज में, इस जल्दी में, इस बुढ़ापे में, इस बचपन में बड़े वार करेगा आपके ऊपर कि क्या सीखना है यार। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत आपको बड़ा दिमाग दिया है और साइंस ही कहती है कि आपके पास 100 बिलियन, अभी शायद इससे भी ज्यादा ब्रेन सेल्स हैं और हर ब्रेन सेल के अंदर जो है वो 20,000 ब्रांचेस हैं इसकी, जो न्यूरॉन्स और वो सारे आपकी पूरा जो सर्किट है जिस्म का, और 500 टाइम्स पर सेकंड इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस फ्लो करती हैं। इतना फास्ट सिस्टम है, कोई सुपर कंप्यूटर भी इसके करीब भी नहीं पहुंचता। और इतना सारा कुछ होने के बावजूद, इतनी बड़ी गुंजाइश के बावजूद, हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम टोटल यानी 3 to 5%, 7%, 10% इस्तेमाल करते हैं। बहुत कोई बहुत ज्यादा करता होगा तो शायद 25% कर लेता हो। बड़ी कैपेसिटी है हमारे पास। तो माशाल्लाह जी, आप ये याद रखें कि सबक नंबर 1 के इख्तिताम पर आपने 12 नए अल्फाज सीखे, जो कि यानी पिछला सबक ये सबक मिला के 7,200 मरतबा से ज्यादा आए हैं। तो अभी आप देखें बैटरी हमारी कहाँ पे पहुंच गई है। बैटरी हमारी 7,000 से क्रॉस कर गई है। बहुत तेजी से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं माशाल्लाह। होमवर्क आपको पता है कि आपने क्या करना होता है। तिलावत करनी होती है आपने 5 मिनट देख के, 5 मिनट जुबानी तिलावत करनी होती है आपने,
उसके साथ ही आपने जो है वो MP सुनना होता है, MP3 को सुने, अपने साथियों से बात करें। नमाज में मुख्तलिफ जो आपके नमाज में जो मुख्तलिफ सूरतें आप पढ़ते हैं, उन सूरतों को आप, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। सर आपका माइक म्यूट हो गया सर। तो नमाज के अंदर जितनी सूरतें हम पढ़ते हैं उनको समझने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो माशाअल्लाह जी, हमने जैसे बिल्कुल शुरू में कहा कि आप टीचर मोड में रहिए। तो टीचर बनना है, आपने सीखना है, दूसरों को सिखाना है, और बड़ा आसान है इंशाअल्लाह। जैसे जैसे आप सिखाएंगे आपके इल्म में इजाफा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। यहाँ पे हमारा जो ग्रामर का सेशन है 1B वो खत्म हुआ। हम 2 मिनट की ब्रेक लेंगे। सारे आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक 2A में आप सबको बहुत खुशामदीद। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए से। इस सबक में आप सीखेंगे सूरतुल फातिहा की 3 आयत और ग्रामर का कुछ हिस्सा होगा, और इसमें आपकी तालीम और शौक के लिए ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि इस सबक में आप 15 नए अल्फाज सीखेंगे। 12 आप पहले सीख चुके, 15 आप इस सबक में सीखेंगे, जो कि 2A है और 2B है इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर। तो तकरीबन जो है वो 1400 अल्फाज आप इस सबक में सीख लेंगे मजीद। तो सबक नंबर 2 के आखिर तक आप 27 टोटल, यानी 12 पहले और 15 आज, तो 27 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कि कुरान पाक में 8,500 मरतबा से ज्यादा है। तो चेक द स्पीड वी आर लर्निंग विद। बड़ी तेजी से हम माशाअल्लाह ये सफर तय कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया है। तो हमारी बैटरी जो है ये तकरीबन ये देखें 8,500 से ज्यादा पे पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह आज के दिन। तारुफ सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा को आज हम स्टार्ट करेंगे, और आप जानते हैं कि सूरतुल फातिहा में यानी इसकी जो तस्मिया है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अगर हम स्टार्ट करें और उसको आयत नंबर 1 लें तो इसमें 7 आयत होती हैं। और एक इसमें जो डिफरेंट राय है, कुछ लोग तस्मिया को, बिस्मिल्लाह को इसका पार्ट नहीं बनाते, बाकी जो आखिरी आयत है उसको 2 में स्प्लिट कर देते हैं। तो आयत 7 ही बनती है, चाहे बिस्मिल्लाह को मिला के कहें या वो ना करें। तो 7 ही आयत है, इसकी 7 आयत। तो ये पहली मुकम्मल सूरत है जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। इसके बहुत सारे नाम हैं। एक तो सूरतुल फातिहा है, सूरत फातिहातुल किताब भी कहते हैं इसको, उम्मुल किताब भी कहते हैं, अशिफा भी कहते हैं इसको जी, और इसको सबल मसानी भी कहते हैं। ये सारे इसके नाम। सबल मसानी यानी बार 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 रिपीट होने वाली सूरत। तो ये तो आपको पता है कि हम पूरा दिन में कितना रिपीट, बिलियंस ऑफ मुसलमान हैं, अगर उनमें से करोड़ों भी पढ़ते हैं, छोटी सी परसेंटेज, तो करोड़ों दफा रोज पढ़ी जाती है। इतनी अहम सूरत है कि अल्लाह ताला ने हर नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया है। दिन में कितनी बार आप जानते हैं। अगर हम सिर्फ फराइज को देख लें कि हम फराइज पढ़े तो 17 तो फराइज बनते हैं, और साथ में जो सुन्नतें हैं अगर उनको भी हम शामिल कर लें, जो 12 सुन्नतें जिनका हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो इनको पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में घर बनेगा, तो 17 और 12 29 हो गए, और 3 वितर भी शामिल कर लें तो 32 हो गए। तो 32 रकात तो वो हैं जो हमें पढ़नी ही चाहिए। तो इन 32 रकात को आप देख लें तो 32 दफा तो हम रिपीट करते हैं। सूरतुल फातिहा और ताउव्वुज़ इनको मिला के
टोटल जो अल्फाज हैं कुरान पाक में 9000 मरतबा हैं। ये देख लें जी कितना बड़ा इम्पैक्ट है। सिर्फ तावुज़, बिस्मिल्लाह और सूरतुल फातिहा, ये यानी अगर हम मिला लें तो 9000 बार रिपीट होते ही है। ये आप देख लें, ये सूरह आल इमरान का एक हिस्सा यहाँ पे स्लाइड में है। तो इसमें जितने रेड अल्फाज हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये वही अल्फाज हैं जो आप सूरतुल फातिहा में सीख लेंगे और रोज पढ़ते हैं आप। अब उसको आप इन डेप्थ थोड़ा सा उसको देख लेंगे बस। तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं, इट इज वेरी इजी। सूरतुल फातिहा की जो आयात हैं इनकी तिलावत सुनते हैं जी पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। हम लोग माशाअल्लाह जो पहली आदत हमने सीखी थी ताअव्वुज़, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद अल्लाह के नाम से शुरू हम जो करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग सब जानते हैं। इसको थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं जी, कि जैसे वहाँ पे हमने बिल्लाह के लफ्ज को अलहदा किया था, तो यहाँ पे बिस्मी को अलहदा करेंगे, बी को अलहदा करें, इस्म को अलहदा करें। बेसिकली ये इस्म है। इस्म हम सब जानते हैं, इसका नाम, इसका मतलब नाम होता है। उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, आपका इसमें गरामी क्या है जी, आपका इसमें गरामी, तो ये वही इस्म है। तो बी का मतलब से, तो जब हम इसको मिलाते हैं तो बीच में से ये जो है ये ड्रॉप हो जाता है और ये बिस्मी बन जाता है। ये क्यों ड्रॉप होता है ये इंशाल्लाह आप वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे कि ये क्यों ड्रॉप होता है। फिलहाल आप ये समझें कि ये बी और इस्म को मिलाया हुआ है और इसका मतलब होता है नाम से। आगे अल्लाह के नाम से हमें मालूम है कि बिस्मिल्लाह कहेंगे तो मतलब कि अल्लाह के नाम से। और इस्म को अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस्मुन आया है, इस्मुन। अच्छा, ये इस्मुन जो है इसकी जमा अस्माउन है। अभी आप बस इसको देख लें, हम इसको इन डिटेल इन सारी चीज़ों को टाइम के साथ साथ देखेंगे और समझ आएगी। तो सारी चीज़ों को डॉक्टर साहब ने तरतीब ऐसे दिया है कि जो चीज़ जहाँ पे इंसान को चाहिए समझना उसको वहीं पे समझाने की कोशिश की। तो इस्मुन की जमा इस अस्माउन होता है जी। इसको याद रखने के लिए आप बड़ा आसान है कि अस्माउल हुस्ना हमें बड़े अच्छे लगते हैं, अवेलेबल है, हम सुनते भी हैं। अस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला के जो बेहतरीन नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये जो अर्रहमान है ना जी, ये बड़ा ही हैवी लफ्ज है। ये हम पढ़ तो वैसे ही देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन अर्रहमान को आज जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसके वजन का पता चलेगा, इसकी अहमियत, इसकी अजमत का पता चलेगा। इसके जो रूट लेटर्स हैं वो रा हा मीम है, रा हा मीम। और ये जो रा हा मीम है ये उर्दू में हम जिसको रहम कहते हैं वो भी है, और अरबी में राहिम कहा जाता है। ये राहिम जो है ये क्या होता है जी, राहिम बेसिकली जो वूम ऑफ मदर होती है उसको भी रहीम कहते हैं। अब उसके अंदर आप देखें कि क्या प्रोटेक्शन है उस बच्चे की, कि उसको खुराक भी मिल रही है, उसका उस पाला पोसना भी हो रहा है, उसकी हिफाजत भी की जा रही है, और फिर वो दुनिया में आता है। तो जिस तरह उस बच्चे को प्रोटेक्ट करके इस दुनिया में लाया जाता है, किस तरह माँ रहम करती है उस बच्चे के ऊपर, यानी खुद तकलीफ में होती है लेकिन बच्चे को उस रहम के साथ पालती है। तो वो एहसास जरा दिल में लाएं और ये देखें कि ये जो अर्रहमान है कि जो बहुत मेहरबान है, इसका रूट वर्ड भी रा हा मीम ही है। और इसके अंदर जिस अर्रहमान की हम बात कर रहे हैं, इस पैटर्न के ऊपर अरबी में जब कोई भी सिगा आता है तो इसका मतलब होता है शिद्दत है पाई जाती है, इसमें शिद्दत पाई जाती है। जैसे नीचे गदबान लिखा हुआ है, अर्रहमान गदबान, गदबान शदीद गुस्से में, तो अर्रहमान बहुत ज्यादा ऐसी रहमत जिसमें शिद्दत पाई जाए। जरा इमेजिन करें कि एक समंदर हो, उसमें तूफान आया हुआ,
बड़ी बड़ी कई 100 मीटर तूफानी लहरें उठती हैं उसके ऊपर, वो वाला जो जो जोश है वो जरा जहन में लाएं और फिर सोचे कि अल्लाह की रहमत जो है वो इस जोशो खरोश के साथ नाजिल होती है। तो ये वो रहमान है जिसके नाम से हम शुरू कर रहे हैं। बहुत हैवी लफ्ज है जी, तो जब आप उसके नाम से शुरू करेंगे तो उसका मतलब है कि इतनी रहम, इतना उसका रहम, इतनी मेहरबानी करने वाला है, ये इतना जोशो खरोश के साथ है। तो पुरजोश रहमत करने वाला 57 दफा है जी कुरान पाक में आया। आगे जो लफ्ज है वो है रहीम। अभी नॉर्मली तो हम पढ़ देते हैं ना जी बहुत मेहरबान रहम करने वाला, तो अब आपको इन दोनों के अंदर जो फर्क है इंशाल्लाह वो भी पता चल जाए। और रहमान तो आपको पता चल गया कि शिद्दत से रहम करने वाला, जोश के साथ रहम करने वाला, और रहीम जो है इसका जो मादा है वो भी वही है, यानी रूट लेटर इसके भी रा हा मीम ही है, और इसका मतलब है रहम करने वाला। लेकिन फर्क क्या हुआ, और रहमान भी रहम करने वाला या मेहरबानी करने वाला, रहीम भी रहम या मेहरबानी करने वाला, तो फर्क क्या हुआ? रहमान उसकी रहमत में शिद्दत है और रहीम उसके रहम में तसलसल है। अब आप ये सोचें जरा कि रहम हो जिसमें जोश भी और तसलसल भी हो, तो वो क्या रहम होगा? तो एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए आप जमील का लफ्ज लें कि जमील नाम भी होता है हमारे यहाँ, जमील खूबसूरत। अब जो जमील आज है वो कल भी जमील ही होगा, वो पहले भी जमील था। एक बच्चा जो पैदा होता है अगर वो खूबसूरत है तो वो जवानी में बुढ़ापे में खूबसूरत ही रहता है। वो एक बंदा जो है इसके इखलाक अच्छा है, जो करीम है, उसको हम ये नहीं कहते कि यार ये आज तो करीम है कल ये बिगड़ जाएगा। हम उससे उम्मीद यही रखते हैं कि ये करीम है तो ये करीम ही रहेगा। तो इसमें एक तसलसल पाया जाता है। अगर जमील है तो तसलसल से जमील है, करीम है तो तसलसल से करीम है, रहीम है रब ताला तो तसलसल से रहीम है। तो ये दोनों में फर्क है जी, कि मुसलसल रहम करने वाला, हम मुसलसल गड़बड़ करते हैं, हम मुसलसल गुनाह करते हैं, वो मुसलसल रहम करता है। कितनी बड़ी मेहरबानी है मेरे रब की हमारे ऊपर। अब जरा आप ये अल्लाह ताला की जो रहमत है उसके जोश को तसलसल से ज़रब दें और फिर आप जरा देखें कि ये मामला किधर जा पहुंचता है, कि किस रहमत की हम बात करते हैं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत की मूसलाधार बारिश है जी। अभी थोड़ी सी आज इस्लामाबाद में बारिश हुई थोड़ी सी, तो दिल खुश हो गया। तो जब ये मूसलाधार बारिश हो और तसलसल के साथ हो तो फिर तो इंसान जो है वो कहाँ पहुंच जाता है। और ये तो हम बात बारिश की नहीं, अल्लाह की रहमत की बारिश, उसकी बात करें। तो जहन में जरा तसव्वुर पैदा कीजिए, एहसास के साथ बिस्मिल्लाह पढ़े, एहसास के साथ ये अपना एहतसाब करें कि जब भी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ क्या ये उसकी उसके रहमान होने का जो मतलब है और उसके रहीम होने का मतलब मेरे जहन में आता है, मेरे दिल में वो चीज उठती है कि नहीं उठती? नहीं उठती तो उसको लाए, अपना प्लानिंग करें कि कैसे लाऊंगा। मैं जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा मैं सोचूंगा कि रहमान अच्छा, रहीम। फिर दूसरों को भी बताएं कि यार देखो आओ बिस्मिल्लाह तो रोज पढ़ते हो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बिस्मिल्लाह में रहमान और रहीम के साथ अगर समझ के पढ़ें तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। इससे हमने सबक क्या सीखा है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि रहमत वाला जो हर किस्म की ज़रूरत और मोहब्बत का ख्याल रखता है, मोहब्बत के साथ ख्याल रखता है। एक तो होता है ना किसी की ज़रूरत पूरी कर देना, लेकिन चाहते हुए ना चाहते हुए बंदा हाफ हार्टेडली काम करता है। नहीं, रहमत वाला जो रब है वो मोहब्बत के साथ ख्याल रखता है, मोहब्बत के साथ ज़रूरत पूरी करता है। और अब आप देखें कि किसी की आप जरूरत पूरी करें और पूरे दिल के खुलूस के साथ जरूरत पूरी करें। जैसे आपका छोटा बच्चा हो ना और उसको भूख लगी हो और आप उसको बड़े मोहब्बत से दूध बना के पिलाएं, तो आप सोचे वो वाली फीलिंग जरा अपने अंदर लेके आए। तो ये हमारा रब जो है ये ऐसा रहमान है, ऐसा रहीम है। अल्लाह की रहमतों को महसूस करें, उसने हमें पैदा किया है, ये हमारी आंख कान दिमाग हाथ पैर दिए जिनसे अब हम टीपीआई सीख रहे हैं। ठीक है, कैसा काम है, अगर ये ना होते तो टीपीआई भी ना होती। ठीक है, तो माँ बाप रिश्तेदार दोस्त अहबाब, ये जमीन आसमान, तरह तरह के खाने पीने इंतजाम, हर तरह के ये खुशियाँ, ये दुनिया, ये रहमतें, ये मोहब्बतें, ये सब उसका करम है जी। इसको फील किया करें, ये फील करेंगे तो ये आपके अंदर बढ़ेगा।
تو یہیں پہ ہم دوسری عادت کا ذکر کر لیتے ہیں جی. پہلی عادت کیا تھی؟ سیفٹی فرسٹ، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسری عادت ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو کہ جب آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور یہ رحمان اور رحیم کا تصور ذہن میں لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو برا کام بسم اللہ پڑھ کے تو نہیں کر رہے گے. آپ کو اچھائی کام کریں گے تو بسم اللہ کریں گے نا. آپ کسی کی مدد کریں گے، کسی سے بات کریں گے، کھانا کھائیں گے، اٹھے بیٹھیں گے، کپڑے خریدیں گے، پہنے گے، تحفہ دیں گے، کچھ بھی کریں گے، اچھا کام کریں گے تو ہی بسم اللہ پڑھیں گے نا. ہم میں سے ایسا تو کوئی نہیں ہے بدبخت آدمی کہ جو برا کام کرے اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھا ہو. ایسا تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوگا، جب آپ کی عادت بسم اللہ پڑھنے کی پڑے گی تو گناہ خود ہی بھاگ جائیں گے، شیطان دور ہو جائے گا آپ سے، کیونکہ آپ اس رحمان اس رحیم کا نام لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات پہ، اس کی صفات پہ جتنا زیادہ ہم غور کریں گے، ہمارا جو یقین ہے اس کی رحمت پہ وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس میں اثر بھی آئے گا. خوشی کا موقع آئے تو اللہ کو مت بھولیں جی. اس کی جو رحمت ہے اس کو یاد رکھیں، اس کا رحمان اس کا رحیم ہونا یاد رکھیں. آزمائش آ جائے تو بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے. وہ مجھے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہی میرے لیے بہتر ہے. مجھے کوئی سبق سکھا رہا ہے، مجھے کچھ سمجھا رہا ہے، میں اپنے آپ کو درست کر لوں یا مجھے راہ راست پہ لا رہا ہے. تو اسی میں کیونکہ وہ تو رحیم کریم ہے، شاید مجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہے اس لیے مجھے تھوڑی سی سختی دے رہا ہے، یا مجھے کوئی کل کی مشکل سے بچانے کے لیے آج تھوڑی سی مشکل سے گزار رہا ہے، میری ٹریننگ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ایک اچھا گمان رکھیں ہمیشہ. اور یہی آپ کی تیسری عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ. اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا، خوشی ملے تب بھی، آزمائش آئے تب بھی اللہ کے بارے میں نیگیٹو گمان نہیں کرنا. اچھا گمان رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ چیپٹرز انفولڈ ہوتے ہیں رحمت کے آپ کے اوپر. آپ خود محسوس کریں گے، کسی کو بتانے کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پازیٹیو تھنکنگ بڑا ایک ورڈ ہے جی. ہم جو ٹرینرز ہیں ان کی کریئرز میں پازیٹیو تھنکنگ ہم ہر جگہ پریچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پازیٹیو تھنکنگ تو قرآن پاک کا بالکل شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع یہیں سے ہو رہا ہے. تو اٹ از اے پارٹ آف آور ریلیجن. ہمارے اپنے سیلف کا یہ حصہ ہے جو پازیٹیو تھنکنگ ہے. تو یہاں پہ ذرا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں جی. میرے ساتھ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو، انمیوٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھی ساتھ ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں، اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بتائیے گا میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ اجاز بھائی آپ ہیں وہاں پہ؟ جی السلام علیکم سر. ہوں سر. او تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. میں نے سمجھا کہ شاید میں اکیلا ہی باتیں کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو اپنے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. ایک دفعہ میں بسم اللہ بولوں گا، میں عربی میں بولوں گا، آپ اردو میں اس کا ترجمہ بولیے گا پلیز. بسم اللہ، نام سے اللہ کے. بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. تو یہ یہاں پہ نیچے یہ یاد رکھیے علم لکھا ہوا ہے. علم کا مطلب جو کچھ سیکھا آگے سکھائیے لوگوں کو. یہاں پہ جی ہمارا یہ جو گرامر کا پارٹ ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے. اب ہم آگے چلیں گے جی الحمد شریف کا جو سیکنڈ آیت ہے اس کی طرف. الحمد للہ رب العالمین.
तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। वर्ड बाय वर्ड इसको देखते हैं जी। अल्हम्दु, अल्हम्दु, हा मीम दाल, इसका जो रूट लेटर्स है हा मीम दाल है। मोहम्मद भी इसी से बनता है। और ये बेसिकली अल्हम्दु के दो जो मतलब हैं वो लिए जाते हैं। एक है जी तमाम तारीफें, ये भी इसके अंदर शामिल है अल्हम्दु के वर्ड के अंदर, कि हर तरह की तारीफ। और दूसरा जो शुक्र है वो भी अल्हम्दु के अंदर शामिल है। तो जब हम कहते हैं ना जी अल्हम्दु, तो इसका मतलब होता है कि तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए है? लिल्लाही, लिल्लाही। तो ये लिल्लाही अल्लाह के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाही तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। ये लिल्लाही बना कैसे जी? फिर ये स्प्लिट करते हैं हम, जैसे बिल्लाह को हमने स्प्लिट किया था तो लिल्लाह को स्प्लिट कर ले। ये लाम है और अलिफ है, यानी लाम और अल्लाह है। ली का मतलब लिए, और अल्लाह आपको पता है कि अल्लाह का नाम है। तो जब हम इसको मिलाते हैं तो ये फिर ड्रॉप हो जाता है। ये क्यों ड्रॉप होता है इंशाल्लाह आप जल्दी सीख लेंगे। तो अभी हमारे पास है जी लिल्लाह, अल्लाह के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। रब, रब का जो वर्ड है ना जी, ये बहुत बड़ा वर्ड है और इसके कई मानी हैं, इसकी बड़ी डेप्थ है। तो परवरिश करने वाला रब कहलाता है, पालने वाला, जर्रे जर्रे को, करोड़ों खुलियों को पल पल पालने वाला, ऑक्सीजन खिलाने वाला, मछलियों को, परिंदों को, पत्थर के अंदर जो कीड़े हैं उनको, इंसानों को, जिन्नों को, सबको। तो आप ये कोविड ने तो हमें सिखा दिया, ये समझा दिया कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। पता है आपको पिछले 2 साल में क्या क्या हुआ है ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सीजन को अगर यानी खरीद के इस्तेमाल करना पड़ जाए तो सिर्फ अमीर लोग रह जाएं दुनिया में चंद एक, वो भी थोड़े अरसे के लिए शायद कोई अफोर्ड कर सके। आम आदमी तो गया, खत्म हो गया। तो बहुत महंगा खाता है, तो ये अल्लाह ताला फ्री में देते हैं हमें। तो इसी तरह आप देख लें, एक व्हेल मछली को अगर पालना पड़ जाए किसी इंसान को, वो उसका 40-50 टन रोज का गोश्त किधर से देगा? दे ही नहीं। बड़ी बड़ी यानी सुपर पावर मुल्क शायद खाली व्हेल मछलियां नहीं पाल सकते समुंदर में जितनी है। तो रब है जी पालने वाला। रब के मानी मालिक, परवरदिगार, पालने वाला, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, सेहत, मौत, जिंदगी, सब नेमतों का देने वाला। इसी तरह हर मुश्किल से वही निकालने वाला है। तो मुश्किल कुशा वही है, गंज बख्श भी वही है, खजाने देने वाला। तमाम कायनात हमारे लिए बनाने वाला वही है, औलाद देने वाला भी वही है, राज़िक भी वही है, तो हमारा मददगार भी वही है। तो हम तो यानी सिर्फ उसी के दर पे हैं। तो ये होती है जी रब होने की शान। और ये रब सिर्फ अल्लाह ही की शान है और किसी की ये हो ही नहीं सकती। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला है बस। आलमीन, रब्बिल आलमीन, रब किसका है? सिर्फ मेरा आपका रब नहीं है, सारे इस पूरी दुनिया का रब नहीं है, या चांद सितारों का रब नहीं है, आलमीन का रब है। आलमीन, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दुनिया में पाई जाती हैं, उसमें एक हमारा छोटा सा सोलर सिस्टम है। और साइंस ये कहती है कि अगर आप दुनिया के रेगिस्तान जितने हैं उनके सहरा इकट्ठे कर ले, समंदरों के सहराओं से, बॉर्डर से रेत इकट्ठी कर ले, तो जितनी रेत के टुकड़े बनेंगे, उन सारे रेत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाएं तो वो हमारी जमीन है। इतनी बड़ी गैलेक्सी है। ये भी एक एस्टिमेट है, इससे भी बड़ी होगी और रोज फैल रही है। तो बहरहाल एक रेत का टुकड़ा जमीन है, और उस रेत के एक टुकड़े के अंदर एक मुल्क के अंदर एक शहर के किसी एक घर के किसी एक कोने में, किसी एक कमरे में इस वक्त बैठे हुए हम बात करें, तो हम अपने साइज का अंदाजा लगाएं। तो वो रब है आलमीन का, तमाम जहानों का। कौन कौन से जहान है जी? ये आलम इंसान है, आलम हैवानात है, आलम मलाइका है, जिन्नात है। फिर ये आलम जिसमें हम रह रहे हैं, कल को कब्र का एक आलम है, कल को हशर का मैदान का आलम है, फिर वो क़यामत का आलम होगा, फिर जन्नत जहन्नुम के आलम होंगे। तो ये अल्लाह ताला हर चीज का वो ही करता धरता है। तो ये कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जब आप रब्बिल आलमीन कहते हैं ना,
تو پھر آپ اس حمد کو، اس تعریف کو اور اس کے شکر کو ذرا اس کی شان کے مطابق لے کے جائیں کہ کتنی بڑی ہستی کی میں بات کر رہا ہوں، تو مجھے اس کا جو حمد ہے، اس کی تعریف اور اس کا شکر کس انداز سے کرنا چاہیے۔ ہم تو ایسے ہاتھ باندھ کے، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں کھول کے ٹائم آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکانوں کے حساب کر رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ پھر وہی اپنا احتساب کریں، پلاننگ کریں، تبلیغ کریں۔ اس دوسری آیت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ حمد کا جو پہلا معنی ہے وہ تعریف ہے۔ تعریف دل سے کرنی ہوتی ہے جی، اوپر اوپر سے تعریف نہیں۔ تو وہی میں نے عرض کیا کہ جب تعریف کریں تو دیکھیں کہ کس ہستی کی بات کر رہے ہیں، جو رب العالمین ہے، اس کے مطابق اس کی تعریف کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کرنا ہے، اس کو اپنی عادت بنائیں۔ یہ آپ کی عادت نمبر 4 ہوگی کہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے، آپ کے دل سے، یا اللہ تو نے کیا یہ شان ہے تیری، کیا یہ دنیا بنائی، کیا چاند ستارے، کیا زندگی، کیا انسان، کیا مجھے تو نے نوازا، کیا میرے بیوی بچے، کیا میرا مال، سب تیری ہے، تیری شان ہے۔ اور اپنا احتساب کریں کہ آپ کس طرح لوگوں کے یہ جو الحمدللہ کہنا ہے نا، اس کو اپنی پریکٹس بنائیں اور اس کا اثر جو ہے وہ ذہن میں لائیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ حمد کا دوسرا معنی شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کنڈیشن میں آپ کو رکھا ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان نے آپ کو ایسے کیوں رکھا ہے، اور یہی اسی کے لائق تھے ہم۔ اگر میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں تو میں اس کنڈیشن کے لائق تھا۔ میں اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بلینئر بنایا تو میری آزمائش ہے وہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت غریب بنایا تو میری وہ آزمائش ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بیٹوین کہیں رکھا ہے تو میری وہ آزمائش۔ ہر آدمی کا ایک علیحدہ پیپر، ایک ایگزام پیپر ہے ہمارے پاس، اور ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں ایگزام دینے آیا ہوا ہے۔ تو میرا پیپر ڈفرینٹ ہے، آپ کا ڈفرینٹ ہے، اس کا ڈفرینٹ ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کی جو ہے نا، وہ ایک دوسرے سے اس چیز پہ امپریس نہیں ہو سکتے کہ یار وہ دیکھو اس کے پاس تو اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنا ہو گیا، میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی آزمائش بھی اسی طرح ہی ہے الٹیمیٹلی۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے۔ تو یہ آپ کی 5ویں عادت ہم نے بنانی ہے کہ اللہ کا بار بار شکر کرنا ہے، ہر کام پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ تصور اور احساس اپنے ذہن میں لائیے۔ الحمدو سوچئے کہ کس کی تعریف کر رہے ہیں، کس کا شکر کر رہے ہیں، اور عالمین کو دیکھیے کہ وہ ہستی کتنی بڑی ہے، اور لوگوں کو سکھائیے، بتائیے کہ الحمدللہ رب العالمین کتنا وزنی ہے جب اس کو ہم کہتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم ڈیٹیل دیکھ چکے اس کی۔ تو یہ زمین آپ دیکھیں کہ سائنس کہتی ہے کہ تقریباً 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کی رفتار سے یہ گھوم رہی ہے، یہ زمین سورج کے گرد۔ یعنی اگر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو 30 سیکنڈ میں، یعنی 1 سیکنڈ میں یہ واکنڈ پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ میں واکنڈ پہنچ جائے گی۔ تو بہت تیز سپیڈ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو جھٹکا فیل نہیں کرتے۔ نارملی زلزلے کبھی کبھی آتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اسٹیشنری ہے۔ تو الرحمن الرحیم کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے۔ آپ اپنی 6ٹھی عادت ایک بنائیے کہ وہ جو رحمان رحیم ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، تو اس کی جو رحمت کی کچھ ریفلیکشن ہے وہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ رحم کیا جائے تو ہمیں لوگوں پہ رحم کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اپنے چھوٹوں پہ، بڑوں پہ رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ بس بیسیکلی وہ اپنے اوپر ہی رحم کرنا ہوتا ہے جب ہم کسی پہ رحم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس پہ رحم کریں گے تو وہ رحمان رحیم ہم پہ رحم کرے گا۔ تو یہ 6ٹھی عادت ہے، یہ اپنے اندر لائیں، اپنے اندر یہ کشن پیدا کریں، لوگوں کو لیٹ گو تھنگس، لیٹ گو، سکھائیے لوگوں کو۔ اب ہم یہاں پہ لیتے ہیں جی ایک بریک فار لیٹ سے 3 منٹس، ابھی 47 منٹ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ سبق 2B میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔
ग्रामर सीखेंगे आज हम थोड़ी सी और मजीद। ये अल्फाज आपके सामने कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मुस्लिम, मुमिन, मुशरिक, काफिर, साले, ये सारे हम वाकिफ हैं, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं इन अल्फाज को। तो एक क्विक रिवीजन, अभी हमने पढ़ा हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, हमें फ्रेश है अभी, इसमें कोई डिटेल हमें नहीं चाहिए। मन हुआ, मन हुम, मन अंता, मन अंतुम, ये भी हमें पता है कि जब हम कहेंगे मन हुआ तो इसका मतलब है कि वो एक मर्द कौन है। इसका जवाब हम क्या देंगे? हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम। तो इसी तरह मन हुम मुस्लिमून, तो इसी तरह ये अभी हमने किया है। तो इसकी अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे आपकी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए। अगर कोई और काम कर रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, फोकस कीजिए इसके ऊपर, क्योंकि ये बेस है, ये बुनियाद है हमारी ग्रामर की। और ये अगर आज आपकी क्लियर हो जाती है तो आपको बड़ी आसानी होगी इंशाअल्लाह। अल्फाज जिनको अभी तक आज तक हम अल्फाज कहते रहे हैं, बेसिकली इसको हम कलमा कहते हैं अरबी में। तो ये कलमा होता है जी, एक लफ्ज जो होता है उसको कलमा कहते हैं। और कलमा जो होता है 3 तरह का होता है। 3 तरह का मैंने अर्ज की कि कलमा 3 तरह का होता है। पहला जो कलमा होता है उसको इस्म बोलते हैं। इस्म, ये वही इस्म है जिसको नाम बोलते हैं। अच्छा, ये अरबी के ग्रामेटिकल रूल्स हैं। अगर आप इंग्लिश में उर्दू के ग्रामर रूल्स देखें, इंग्लिश के देखें, बाकी लैंग्वेजेस के देखें, तो उसमें बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, उनकी डिवीजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अरबी में इनको बड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। जैसे इस्म है, इस्म क्या है कि किसी का नाम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इस्म कहते हैं। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, किताब, मक्का, हामिद, जैद, ये सब इस्म है। और किसी की सिफत है तो वो भी इस्म की कैटेगरी में अरबी में आ जाता है। बाकी लैंग्वेज में अलहदा है, यानी इस्म अलहदा है, अगर सिफत है तो उसको अलहदा कोई कैटेगरी में। लेकिन अरबी में ये आसानी ये है कि चाहे सिफत हो या नाम हो, उसको हम इस्म की कैटेगरी में रखते हैं। सिफत क्या है कि वो मुस्लिम है, मुस्लिम होना सिफत है, मोमिन होना सिफत है, बड़ा होना सिफत है, यानी ये सारी चीजें तो वगैरह वगैरह। तो कोई भी नाम होगा या सिफत होगी किसी की, तो वो हम उसको इस्म की कैटेगरी में लेंगे। और कुरान पाक में हम टेक्स्ट देखते हैं कुरान पाक की, तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो लफ्ज है ये इस्म है कि नहीं? उसके लिए आज ये नोट डाउन कर लीजिए कि बड़ी आसान इसकी निशानियां हैं। अगर आप किसी भी लफ्ज के पहले अलिफ लाम यानी अल लगा हुआ देखे तो फौरन आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये तो इस्म है। ये वो आसान वाली जो पहचाने हैं ना, वो आपको बता रहे। इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम इनके ऊपर बात करेंगे। और अरबी ग्रामर सीखते हुए हमने हमेशा दिमाग की एक खिड़की खुली रखनी है कि कुछ एक्सेप्शंस भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल इस्म जिस भी लफ्ज के पहले अल लगा हुआ होगा तो आपने कहना ये इस्म है। एक तो ये निशानी होगी। दूसरी निशानी, कुरान पाक पढ़ते हुए आप देखते हैं कि हरूफ के आखिर में जो आखिर वाला जो हर्फ होता है ना, अल्फाज का आखिर वाला हर्फ, उसके ऊपर कभी 2 पेश आई होती हैं, कभी 2 जबर आई होती हैं, कभी 2 जेर आई होती हैं। तो ये दूसरी निशानी है इस्म की, कि जिस भी लफ्ज के आखिरी हर्फ के ऊपर आप 2 पेश देखें तो इस्म है, 2 जबर देखें तो इस्म है, 2 जेर देखें तो इस्म है। तो अल हो या ये साइंस हो 3 तो इस्म है। अच्छा, इसके अलावा 3 निशानियां और हैं, जिन 2 को तो अभी हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे और एक को बाद में करेंगे आने वाले लेसन्स में। वो ये है कि इस्म के आखिर में वाव नून आपको मिल जाए, यानी किसी लफ्ज के आखिर में वाव नून हो। जैसे मुस्लिमून था, हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, मुस्लिमून, काफिरून, ठीक है, वाव नून। अब ये क्या है कि मुस्लिम से मुस्लिमून बन जाता है, इसका मतलब है कि ये जमा है। तो जमा के सीगों में वाव नून का इजाफा आप देखेंगे, तो इसका मतलब है जहां वाव नून आएगा तो वो क्या होगा? वो भी इस्म होगा। इसी तरह अगर किसी लफ्ज के आखिर में या नून आ जाए, या नून ये जो बीच में आया हुआ है, तो वो भी इस्म है। और इसी तरह अगर उसके आखिर में अलिफ और ता आ जाए तो वो भी इस्म है।
تو اس کی کچھ एग्जांपल्स हम देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें इंशाल्लाह। तो ये निशानियां तो है इसम की। उसके बाद दूसरा जो कलमे की किस्म है उसको हम फेल कहते हैं, जिसको वर्ब कहा जाता है, वर्ब, ठीक है। तो इसमें जिससे काम के होने या करने का पता चले, यानी वर्ब इसलिए होता है ना, ये एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और नाउन होते हैं, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये सारे इंग्लिश की ग्रामर में हम बचपन में पढ़ते रहे हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे फेल वर्ब को हम क्या कहते हैं, जिससे काम के होने या करने का पता चले, ठीक है जी। जैसे आगे एग्जाम्पल में फतहा लिखा हुआ है, फतहा उसने खोला, फतहा उसने खोला, या अमलूना वो करते हैं या करेंगे, ठीक है, वो काम करते हैं या वो करेंगे। तो ये होता है जी आपका फेल। अच्छा, अब इस्म हो गया, फेल हो गया कि अगर हम कहते हैं कि अब हर्फ क्या चीज होती है जो इस्म और फेल को जोड़ेगा आपस में, क्योंकि एक जुमला बनाने के लिए आपको बीच में हर्फ चाहिए होंगे जो कि जोड़ेंगे आपके इस्म और फेल को, और एक जुमला बनेगा। आगे एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा। तो हर्फ किस तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। कुछ एग्जांपल बी, ली, मिन, फी, इन्ना, ये आपके पास हैं, और भी हैं। इंशाल्लाह उनको वक्त के साथ साथ हम ये सब इनको हम सीखते जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज जो है वो क्लियर करता चलूँ मैं कि आम इस्म और खास इस्म, आम इस्म और खास इस्म, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना अबुक, अबुक का मतलब है कोई एक किताब, कोई एक किताब। तो अरबी में उसको कहेंगे किताबुन, यानी वो दो पेश में से एक आ गया। यहाँ पे जो तीन साइंस है ना, दो पेश, दो जबर, दो जेर, तो आप एक साइन आ गया किताबुन। तो जैसे ही आपने किताबुन देखा तो क्या है आपके जहन में, ये क्या है, कोई एक बताएंगे? किताबुन क्या है? वर्ब है, हर्फ है, इसम है, क्या ये इसम है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसम है, माशाअल्लाह, तो जैसे ही हमने आखिरी हर्फ पे दो पेश देखी तो हमने कहा ये तो इसम है भाई। इसी तरह अगर दो जबर आएंगी फिर भी हम कहेंगे इसम है, अगर दो जेर आएंगी फिर भी हम कहेंगे इसम है। तो किताबुन, किताबुन का मतलब है एक किताब, यानी कोई एक किताब। अच्छा, ये तो आम है। खास क्या हो जाएगा? खास करने के लिए जैसे इंग्लिश में दा लगाते हैं, द बुक, आ बुक कोई एक बुक, द बुक यानी एक खास कोई किताब। तो जैसे हमने किताबुन कहा तो अब उस किताब से पहले अगर अल लगा देंगे तो वो अल किताबू बनेगा और वो खास हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी अल लगाना है तो वो जो दो पेश या दो जबर या दो जेर वाला साइन है ना, उसमें से एक गिर जाएगा, एक गिर जाएगा, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। क्यों नहीं इकट्ठे आ सकते, ये ज़हन में रखिए कि जैसे हम कहते हैं आ बुक और दा बुक, तो हम ये नहीं कहते कि दा आ बुक, ठीक है, हम दा आ बुक नहीं कहते, या तो हम कहेंगे आ बुक या हम कहेंगे दा बुक, ठीक है। तो इसी तरह किताबुन का मतलब होता है एक किताब, और जब हमने इसको खास करना है, अल लगाना है, तो इसका मतलब बनेगा दा। तो जब दा लगाएंगे तो ये बन जाएगा अल किताबू, अल किताबुन नहीं होगा, अल किताब बन नहीं होगा, अल किताब बिन नहीं होगा, ये बन जाएगा अल किताबू। अब ये कब बन आएगा, यानी कब ये जबर में आएगा, कब जेर में आएगा, कब पेश में आएगा, ये आगे की बात है, अभी डोंट वरी अबाउट दैट। तो अल किताबुन नहीं आएगा, अल किताबू आएगा। क्लियर इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे हम आम को खास करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी जो है वो आसानी में आ जाए। देखिए मुस्लिमुन, मुस्लिमुन हमने पढ़ा, तो जब हम कहेंगे मुस्लिमुन यानी एक मुसलमान, मुस्लिमुन, तो उसको जब हमने खास करना है तो हम कहेंगे अल मुस्लिमू। फर्क क्या आएगा, शुरू में अल लग रहा है और मीम के ऊपर से दो पेश थी, एक पेश गई, एक पेश भाग गई। क्यों? वो अल जैसे आया तो एक पेश भाग गई। तो ये ज़हन में रखें, जैसे अल दाखिल होगा तो एक पेश भाग जाएगी, एक ही पेश रह जाएगी। तो अल मुस्लिमू। इसी तरह मुमिनुन, मुमिनुन अल मुमिनू, सॉलिहुन अस्सॉलिहू, काफिरुन अल काफिरू, मुशरिकुन अल मुशरिकू।
वेरी सिंपल, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं अल्लाह के फजल से। आगे कुछ और हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये जो आखिरी हमने पढ़ा ना जी, मुस्लिमुन, मुमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि इनकी आखिर की जो दो पेश होते हैं उनको हम नॉर्मली बोलते हुए नहीं लगाते हैं, वो उन, इन, अन ये हम छोड़ देते हैं। तो मुस्लिमुन की जगह हम क्या देते हैं मुस्लिम, मोमिनुन की जगह हम क्या देते हैं मोमिन। इसी तरह आपको पता है कि कुरान पाक में पढ़ते हुए जहाँ पे वक्फ करते हैं या आयत का आखिर आता है तो वहाँ पे भी अगर ये दो लगे होते हैं साइंस, तो हम वहाँ पे उसको नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो मुस्लिम मुन होगा तो हम मुस्लिम पढ़ देंगे, मुमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। तो ये आसानी में, यानी ये बोलने के लिए आसानी के लिए ये भी आपको साथ में। अच्छा, इनको जब जमा बनाएंगे तो अब आप वो वाव नून और या नून वाला जो एडिशन है वो आपको नजर आएगा कि मुस्लिमुन की जो जमा है वो मुस्लिमूना है बेसिकली, और जब हम बोलते हैं तो हम मुस्लिमूना की बजाय मुस्लिमून कह देते हैं आसानी के लिए। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, ये अब आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एक चीज टेक्निकल है जो समझने वाली है कि जब ये मुस्लिम के ऊपर दो जबर हैं, सॉरी दो पेश हैं, तो ये मुस्लिमुन है तो इसकी जमा होगी मुस्लिमूना। लेकिन जब इसके ऊपर मीम के ऊपर, मुस्लिम के मीम के ऊपर दो जबर या दो जेर आएंगी तो फिर इसकी जमा जो है वो मुस्लिमीना होगी। दोनों के लिए देखें, मुस्लिमन जब आया तो दो जबर लगी और एक अलिफ का इजाफा हो गया। ये ज़हन में रखना है कि जब भी दो जबर लगाएंगे हम आखिरी हर्फ के ऊपर तो एक अलिफ भी लगा देंगे साथ में। तो मुस्लिमुन मतलब वही है इसका, लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ है ये इंशाल्लाह आगे ग्रामर में आएगा कि ये आगे ऐसा क्यों होता है, ये आप समझ जाएंगे बहुत ईजी, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है उसका। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, मुस्लिमन, मुस्लिमीना और मुस्लिमिन, मुस्लिमीना, ये दोनों एक ही है। चाहे यानी यहाँ पे अब हम इसको इसमें जरा कंसोलिडेट करते हैं कि ये जो जमा हम बना रहे हैं इसके अंदर मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बना जी, और मुस्लिमान और मुस्लिमिन से, ये सब टॉप रो के ऊपर देखें, ठीक है। मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बनेगा और मुस्लिमान हो या मुस्लिमिन हो इससे मुस्लिमीन ही बनेगा दोनों के लिए। तो या तो जमा मुस्लिमून आएगी या मुस्लिमीन आएगी, और दोनों ही आप कुरान पाक में देखते हैं, ये आपको मिल जाएगी। इसी तरह मोमिन होगा यानी मोमिनुन तो मोमिनूना बनेगा, मोमिनूना, ये भी कुरान पाक में मिलेगा आपको। और अगर मोमिनन आएगा, मोमिनिन आएगा तो मोमिनीन आएगा, ये भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, मुशरिकून, मुशरिकन, मुशरिकिन, मुशरिकीना। तो या तो वाव नून लगेगा या नून लगेगा। वाव नून तब लगेगा जब हर्फ के आखिरी यानी लफ्ज के आखिरी हर्फ पे दो पेश होंगी। या नून कब लगेगा, जब हर्फ के आखिरी यानी लफ्ज के आखिरी हर्फ पे या तो दो जबर हो, दा, या दो जेर हो, तो फिर या नून लगा के जमा बना देंगे। इट इज वेरी इजी, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे फिर जरा रिपीट कर लें हम तीनों चीजें कि इस्म की अहम निशानियां क्या हैं जी। शुरू में अल आता है उसके, या फिर आखिरी हर्फ के ऊपर दो जबर, दो पेश, दो जेर आएंगे, या फिर आखिर में एडिशन होगा वाव नून का या नून का। तो अल जब लगेगा इस्म के ऊपर तो उसके दो पेश गिर जाएंगे, एक पेश रह जाएगा। अगर दो जबर है तो एक जबर रह जाएगा, और अगर दो जेर हैं तो एक जेर रह जाएगा। अब आप देखें कि जब हम अल मुस्लिमुन के साथ लगाएंगे तो अल मुस्लिमू बन जाएगा और उसकी जमा अल मुस्लिमूना बन जाएगा। अगर मुस्लिमन होगा तो अल लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा अलिफ है वो भी भाग जाएगा और एक जो जबर है एक्स्ट्रा वो भी भाग जाएगी, तो अल मुस्लिमा बन जाएगा, अल मुस्लिमा। तो उसकी जमा क्या बनेगी, अल मुस्लिमीना। अगर मुस्लिमिन के साथ लगाएंगे तो अल मुस्लिमिन, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमीन। हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिमून, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिमून। अंता मुस्लिम, अना मुस्लिम।
अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून, वेरी इजी। अब वो जो हमने हुआ हम पढ़े थे वो अब आप इसके साथ लगा सकते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो हुआ आएगा हुआ, अगर जमा होगा तो हम आएगा। अगर यानी आप यानी फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं, ये तो गायब की बात है ना, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, वो गया, ठीक है, दूर की बात। अगर आप फर्स्ट पर्सन में आते हैं तो अंता की बात हो रही है, अंता अना, अंता अना। और अगर जमा की बात हो रही है आपस में तो अंतुम और नहनु की बात होगी। अरबी की बोलचाल में दो नए अल्फाज और ऐड कर लेते हैं जी। पहले हमने मन पढ़ा था, अब हल और नाम को भी कर लें, ये भी आप जानते हैं सारे। हल और नाम भी कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हल का मतलब होता है क्या और नाम का मतलब होता है हाँ। हल हुआ मुस्लिम, हल हुआ मुस्लिम, यानी क्या मतलब हल हुआ मुस्लिम, कि क्या वो एक जो मर्द है वो मुस्लिम है। हल हुआ मुस्लिम, हम कहेंगे नाम, हाँ हुआ मुस्लिम, हाँ वो मुस्लिम है। हल हुम मुस्लिमून, हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून। हल अंत मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून। तो ये ऐसे बस अरबी बनती जाती है जी, बड़ी आसान है। नुक्ता तालीम, दिमाग को इस्तेमाल करें, यूज इट और लूज इट, बड़ा पुराना फिक्रा हम सब जानते हैं। शैतान जरूर भटकाता है जी कि क्या कर रहे हो, किन मुश्किलों में पड़ गए हो, ये हुआ हम कैसे सीखोगे, ये उन इन अन कैसे सीखोगे। बहुत इजी है, पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, भाग जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और याद रखें कि आपका 97% दिमाग जो है ना वो भी खाली पड़ा है, उसको चाहिए, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सेल्स डेड हो जाते हैं। और एक स्टडी ये बताती है कि अरबी ग्रामर पढ़ने से इंसान का दिमाग बहुत तेज हो जाता है, ये फैक्ट है। बाकी आप एक्सरसाइज करें, कुरान पाक को पढ़ें, इन सारी टेक्निक्स को आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे, मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज आप याद रखिए कि सबक नंबर 2 के इख्तिताम पर आपने 27 अल्फाज सीख लिए हैं, ठीक है, 12 पहले, 15 आज, और टोटल 8,500 से ज्यादा आपकी बैटरी की चार्जिंग होगी है। ये यहाँ पे देखें, हमने यहाँ ऊपर जाना है, ठीक है, इस कोर्स के एंड में हम यहाँ 40,000 को क्रॉस कर चुके होंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच गए 8,500। होमवर्क अब आप सबको याद है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अपना जो पॉकेट बुक है, जो कार्ड है, इसको प्रिंट करके लगाएं, इसके अंदर जो अल्फाज मानी है उनको सीखें, टीचर बने, दूसरों को सिखाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।